Hello. Hello, can you hear me? Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. We'll just wait for 1 or 2 minutes. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we will do revision for relations and functions. Okay, very quick revision. Uh, so there are uh, certain types of relations that we have studied. ठीक है, तो एक तो इसमें है एम्प्टी और यूनिवर्सल. इनको हम कई बार ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं. ठीक है, एम्प्टी वी ऑलरेडी नो व्हाट इट मींस एंड यूनिवर्सल मींस द कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट. Okay, so these are two types of relation. An important type of relation is equivalence relation. Okay, and we will have to do a lot of questions around that today. And to be an equivalence relation, जो रिलेशन है उसको तीन प्रॉपर्टीज मीट करनी चाहिए: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं इन सिंपल टर्म्स, बट दैट शुड हैपन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट. सिमेट्रिक वो है जहां पे अगर हम उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो भी वो एलिमेंट, वो जो पेयर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में. और ट्रांजिटिव जो है वो तब होता है जब दो पेयर्स होते हैं जिसमें कि फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है, तो जो पहला और आखिरी एलिमेंट है वो मिलकर भी एक पेयर बनाते हैं. ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं है अभी. किसी को डाउट होगा कहीं पे भी इसमें तो बोल दे. ओके, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ all elements that are related to each other. Okay, when we do questions we will understand what it actually means, and it is written with a square bracket and one of the elements from the set. And the equivalence classes are mutually disjoint. What it means is that what is in one equivalence class is not in another equivalence class. Okay, and then we also in this chapter we have done the types of functions, जिसमें कि इंजेक्टिव है जो 1 1 है. ठीक है, which means that all distinct elements in set 1 have a distinct image in set 2. Okay, subjective onto है, ये आपको नाम याद रखने हैं. onto में क्या है कि जो भी कोडोमेन है और रेंज है वो सेम है, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज्ड अप होने चाहिए इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. और बाइजेक्टिव है जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो. ठीक है, तो नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस. सो दिस वाज अ वेरी वेरी ब्रीफ रिकैप. ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस तो क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक है, प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस विद मी. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Okay, so we have to identify whether they are reflexive, symmetric and transitive. Okay, now how would we do that, right? So let's do the first one. So what is the relationship? 3x minus y is equal to 0, which means y is equal to 3x, right? So now let's look at an element which is a comma a, right? A is not equal to 3a
when a is not equal to 0. ओके, तो ये तो कभी सच होता नहीं है जब तक a 0 ना, और 0 तो वैसे भी नहीं है इस सेट में, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay, this is very easy. I'm just doing it so that it's a quick revision. Okay, then let's now look at if there is an element AB, then does BA also meet the relationship? So if y is equal to 3x, then 3 is x is equal to y by 3, not 3y, right? So it means it is also not symmetric. Okay, and the third one now, if y is, let's say y1 is equal to 3x1, okay, or let me put it in a different way. Okay, let's say we have a1, a2, and we have a2, a3, right? Then a2 is equal to 3a1, okay, and a3 is equal to 3a2, which means a3 is equal to 9a1, which is not equal to 3a1. Okay, so it is not transitive. So none of the conditions are met in this. Okay, can somebody tell me the answers for the second one? Y is equal to x plus 5. So is it this? True, false? Is this an element of the relation? तो विकास आप बताइए। विकास, कार्तिक, कार्तिक, who is actually Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ कार्तिक आप बताइए। क्या ए रिलेशन, देखिए a is not equal to a plus 5, right? Yes, sir. So it is not a reflexive. हाँ, तो not reflexive. ओके, अब दूसरा पार्ट करते हैं। एक अगर a कॉमा b है तो क्या b कॉमा a भी होगा बिलोंग्स टू R? होगा ऐसा? देखिए अगर b इज इक्वल टू a प्लस 5, देन a इज इक्वल टू b माइनस 5, नॉट b प्लस 5, राइट? राइट? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या हुआ? नॉट Symmetric. सिमेट्रिक भी हो गया। अब मुझे ट्रांजिटिव बताइए किस तरह प्रूव करेंगे है या नहीं है। क्या लेंगे सबसे पहले? सर a, b. हाँ, तो A1 A2 उसमें ना ये वाला ज्यादा आसान लगता है लिखना। मान लीजिए हमारे A2 A3 और A3 A1। हाँ, तो अब हम कैसे लिखेंगे कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 5, ठीक है ना, और A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 5। A2 प्लस 5, राइट? अब हम क्या करेंगे, A2 की जगह A1 डाल देंगे, ये वाली डाल देंगे सब्स्टिट्यूशन। ये 1 है, ये 2 है, हमें बस ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 5 प्लस 5 विच इज A1 प्लस 10, और होना क्या चाहिए था? A1 प्लस 5, राइट? तो ये भी yes, नहीं हुआ, not transitive. नॉट ट्रांसिटिव। किसी को डाउट है? Anybody has a doubt?
चलिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आइडिया लगेगा. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय दिस. ओके, सो यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमें किस फॉर्म में दिया गया है? रोस्टर फॉर्म में दे दिया है. ठीक है ना. तो यस अब ये सर. बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं. मतलब इसमें तो बता ही दिया उन्होंने कि सिमेट्रिक है लेकिन यस सर, बता दिए. रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना ए पड़ेगा? कॉमा ए. हाँ ए तो कॉमा बी और बी कॉमा ए. नहीं, रिफ्लेक्सिव नो में सर, ए कॉमा ए. ए कॉमा ए करना है, लेकिन किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए. यानी कि वन यस कॉमा सर, वन भी 1,1 होना होना चाहिए चाहिए. इसमें. टू 2,2 भी 2,2. होना चाहिए. 3,3 भी 3,3. होना चाहिए. यहाँ तो इनमें से एक भी नहीं है. कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, अब हमको देखना है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव सबके लिए नहीं होता है. ट्रांजिटिव हम केवल रिलेशन में देखते हैं. तो अगर 1,2 है तो इट शुड तो इम्प्लाई उसका 2,1. 2,1 should also belong to R, which it does. यस सर. है ना. तो बस हमें इतना ही देखना है. Yes. हमें ये सबके लिए नहीं देखना है इस केस में. तो ये हो गया सिमेट्रिक हो गया. राइट. अब हम ट्रांजिटिव के लिए Yes. देखेंगे कि 1,2 है और 2,1 भी 2, इज वेरी गुड. बट दिस शुड इम्प्लाई बट कि 1,1 भी होना चाहिए. 1,3. नहीं, 1,1 होना चाहिए. देखिए ये 1 मैप्स टू 2 एंड 2 मैप्स टू 1. तो इसका मतलब ट्रांजिटिव का मतलब 1 शुड मैप टू दिस. सी ट्रांजिटिव ऐसे होता है, इफ A मैप्स टू A2 एंड A2 मैप्स टू A3, इट एंड. यस सर. ओके, इफ है, ये कंडीशन है बस. इफ अगर ये हो, अगर ऐसे दो एलिमेंट हमें मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर इट शुड मीन दैट ये जो है ये भी होना चाहिए. ठीक है ना. तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि Okay. 1,1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. अभी इसी को थोड़ा और तो नॉट समझ. ट्रांजिटिव. हाँ, मान लीजिए मैं ये भी होता हमारे पास, तो क्या ये ट्रांजिटिव होता? सर क्या? यस सर, होता फिर तो. ठीक है, लेकिन ये हमें हर एक के लिए चेक करना है. अगर ये है तो ये 1,1 एग्जिस्ट करता है. अगर ये है तो 2,1 होना चाहिए, वो भी है. और अगर ये दोनों हैं तो वो तो मैच ही नहीं होते उनके एलिमेंट्स, तो उसमें हमें चेक ही नहीं करना. राइट. अब अगर हम ये और इसको लें तो 1,2 आता है, वो ये है. राइट. तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव तब हो जाता. ठीक है, लेकिन वो नहीं होने से ट्रांजिटिव नहीं हुआ. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय. ओके, तो एक तो ये रिलेशन दिया हुआ है, एक ये, तो दोनों को अलग अलग करना है हमें. तो दीज आर जस्ट 2 पार्ट्स. ओके, तो इस रिलेशन को हमें ये बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. एक्चुअली उसने लिखा है, हमें बस दिखाना है. ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? एवरीबडी नोज व्हाट दिस मीन्स, राइट. दिस इज द मॉड्यूलस सिंबल. ओके, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है. हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या A, A बिलोंग्स टू R. डस, बताइए. अगर A, A होगा तो रिलेशन क्या बनेगा? A माइनस A, which is Yes, equal sir. to 0, and 0 is a multiple of 4, or is it not? Is 0 a multiple of 4?
विकास आप बताइए, इज 0 अ मल्टीपल ऑफ 4? No, sir. 0 is a multiple of 4. 0 is a multiple of everything, right? Because let's say कोई भी नंबर है, मेरे पास x है, उसमें 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, ठीक है ना? तो 0 एक ऐसी चीज है जो सभी का मल्टीपल है, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब a कॉमा ए हमेशा सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। What does it mean? A comma A belongs to R always. Okay, so even without listing all the numbers, we can show that it is reflexive. Okay, now let's try and do the second part, which second part means we have to show that it is symmetric. Okay, symmetric के लिए हमें दिखाना है अगर A comma B है, if A comma B belongs to R, it should imply that B comma A also belongs to R. ठीक है ना? अब ये देखिए, if A minus B, if A minus B is divisible, is a multiple of 4, then of course B minus A is also a multiple of 4. दोनों की एक ही तो वैल्यू है, a माइनस ए और b माइनस ए तो एक ही चीज है, क्योंकि हमने मॉड्यूलस साइन लगा दिया है बाहर, राइट? तो इसका मतलब अगर ये पार्ट ऑफ रिलेशन है तो ये भी होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक। अब इसका तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है हमको इक्विवेलेंस के लिए? ट्रांजिटिव। नाउ यस सर, दिस इज, ट्रांजिट। हाँ, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ज्यादा नहीं है कि मान लीजिए a कॉमा एंड दिस बिलोंग्स टू R एंड A2, लेट अस से, ओके, लिखते वक्त आप पूरा लिखेंगे, लेट अस से दिस बिलोंग्स टू R एंड A2 कॉमा A3 also, we can just write it in simple, belong to R. Okay, what does this mean? It implies A1 minus A2 is divisible by 4 or is a multiple of 4, एक ही बात, ओके? और यहाँ पे भी it implies A2 minus A3 modulus is a multiple of 4. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि A1 minus A3 is that a multiple of 4? देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 minus A2, right? If A1 is bigger than A2, okay? And यहाँ पे भी लिख सकते हैं A2 minus A3 if A2 is bigger than A3, okay? So इसको अगर हम लिख लें 4n, इसको लिख लें 4m, तो what will this be equal to? 4n minus 4n. Okay, we can take 4 out and it becomes n minus n, right? So it is a multiple of 4. समझ आया कैसे किया है ये लास्ट पार्ट? To show that we have just written it as 4n and 4m, and then any operation on them, addition, subtraction, will also give us a 4n common. Okay, तो ये सब जो है ट्रांजिटिव है। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, तो पहले वाले का कर लेते हैं हम केवल। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये ढूंढने को कह रहा है। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। तो क्या होंगे इसमें एलिमेंट्स बताइए? 1 से कौन कौन से रिलेटेड है, यानी 1 के साथ ये कंडीशन कौन कौन पूरी करता है?
सबसे पहले 1 के साथ वो कंडीशन 1 खुद पूरी करेगा, राइट? इट्स अ रिफ्लेक्सिव सेट रिलेशन, राइट? दूसरा क्या होगा, 1 के साथ 5 करेगा क्योंकि 5 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और फिर क्या करेगा, 9 करेगा, उसके बाद 13 करेगा, बट 13 इज आउटसाइड दिस रेंज, सो इट इज 1, 5 and 9. This set is the equivalence class 1. Understood this last part? चलिए अब एकदम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1-1 फंक्शंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो कौन बताएगा मुझे? अंजलि आप बताइए। यस सर। हाँ बताइए अंजलि, ये पहले वाला 1-1 है क्या? सर पहले वाला तो नहीं है 1-1। हाँ क्यों नहीं है? सर 1-1 में हमें बस एक सिंगल एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है सर हाँ उसमें। हाँ हाँ, वो तो सर हर पर एक इसमें फंक्शन एक में एलिमेंट होता की है। दो इमेज। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। 1-1 में हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ओके। आप समझे? आप बोल रहे हैं हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, वो तो हर एक फंक्शन में होती है, लेकिन डिस्टिंक्ट होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 और 3 दोनों की एक ही इमेज है, अलग नहीं, तो ये नहीं है 1-1। अब ये बताइए, नेक्स्ट वन, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ये तो होगा। ये है, क्लियरली है, कोई इश्यू नहीं है। और ये वाला, यस सर। ये भी है। और ये, यस सर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नहीं सर ये नहीं है। क्या इश्यू है इसमें? इसका इश्यू ये है, सर ये ये जो लास्ट फंक्शन ही नहीं है। सर जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये इसकी फंक्शन इमेज नहीं है, इज फंक्शन ही नहीं। नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इस Yes, तरह sir. का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस तो कम है आपको, राइट? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। आप Yes, sir. मतलब हमने पूछा कि इज इट 1-1 फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो 1-1 का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि Yes, एक sir. डोमेन तो पूरी तरह यूज होना चाहिए ना, डोमेन ही यूज नहीं है इसका तो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक पार्ट था इसका, अदरवाइज राइट। ओके, अब सर्जेक्टिव को देखते हैं। सर्जेक्टिव को हम और क्या नाम से बुलाते हैं, जो सिंपल नाम है इसका? क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव को? ऑन टू। ठीक है, यस। तो अब बताइए, ये पहले वाला क्या ऑन टू है? फर्स्ट वन, इज इट ऑन टू? ऑन टू देखने के लिए हमें करना क्या है? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू नो इट इज ऑन टू? हमें बस ये देखना है कि रेंज में कोई भी खाली ना बचाओ, राइट? वो मेन चीज है। तो रेंज पूरी तरह से कोडोमेन और रेंज एक ही है, और फंक्शन तो ये है, कोई फंक्शन में तो इसके प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये है। नाउ व्हाट अबाउट दिस? सर एक बार बता दीजिए फर्स्ट वाले कौन क्यों है? फर्स्ट वाला ऑन टू इसलिए है कि जो x y z a कोडोमेन में यही 4 एलिमेंट्स हैं, राइट?
यस सर, यस। और चारों के चारों यूज हो गए हैं, चारों के चारों जो है इमेज है, तो ऑन टू हो गया, राइट। यानी कि रेंज इज सेम एज कोडोमेन, ओके। राइट। तो ये ऑन टू हो गया, लेकिन पहले हमें ये भी देख लेना चाहिए कि चीज फंक्शन है या नहीं। अगर कभी कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछे तो ये फंक्शन है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ फंक्शन की सब प्रॉपर्टीज मीट हो रही है। अब ये वाला देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी डोमेन, अगर हम कोडोमेन को देखें तो सब कुछ यूज अप हो गया, लेकिन इसका आंसर नो है। क्यों है इसका आंसर नो, बताइए। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। क्यों है नो? अंजलि, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं देता है वो। क्या इश्यू है यहाँ पे? सर पी के साथ। हाँ, पी के साथ है, पी की दो इमेजेस है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। यस सर। ओके, सो ये ऐसे छोटा सी बस ट्रिक क्वेश्चन है, जस्ट टू कीप इट इंटरेस्टिंग। अब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? मैनी इंजेक्टिव वन। भी, हाँ, इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, यानी 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये पहले वाला, इसमें मैंने यस एलिमेंट्स को नाम नहीं दिए, ये है या नहीं है बाइजेक्टिव? है सर। देखिए, हाँ, अभी देखिए हमें दोनों चीजें देखनी है, ऑन टू एंड 1 1, ठीक है। ऑन टू तो ये है, सर सब कुछ यूज्ड अप, Yes, sir. लेकिन 1 1 नहीं है। इन दो की एक ही इमेज है, एक ही इमेज है। तो ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। अब ये वाला, ये क्या है? ओके ओके सर। Sir, ये on to नहीं है, on Yes. one है. ये 1 1 तो है, सर एक Yes, sir. ये 1 On 1 one है, है, on two नहीं है. ऑन टू नहीं है। और ये सर पर वाला, एक तरह से ये फंक्शन भी नहीं है अरे ना। on क्यों two भी है, फंक्शन on क्यों one नहीं नहीं है है. ये? क्योंकि ये अनयूज्ड है, इसलिए कह रहे हैं। यस सर। यस देखिए, सर। कोडोमेन में अनयूज्ड एलिमेंट हो सकते हैं, उससे फंक्शन होने पे रेंज उसका एक छोटा Yes, sir. पार्ट हो सकता है कोडोमेन का, तो ये फंक्शन तो है। ओ, अगर यहां कुछ बच जाए तो फंक्शन नहीं यस होगा, सर, तो और अगर फंक्शन नहीं है। यहां Yes, किसी sir. की दो इमेज बन जाए तो फंक्शन नहीं, ठीक है। Yes, sir. ओके अब ये ओके तीसरा देखते हैं कि ऑन टू 1 1 Sir, ये दोनों, on two दोनों. सर। 1 1 तो है ही। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कुछ बचा नहीं है, ऑन Yes, टू sir. भी है सर। है ना। फंक्शन यस तो सर। है ही, पहले ही हमने देख लिया, राइट। तो ये एकदम सिंपल से थे, इसमें कोई ट्रिक कहीं नहीं थी, ये सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। शो दैट द फंक्शन आर स्टार, ओके। सो ये कई जगह आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कि रियल फंक्शन विदाउट जीरो, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स विदाउट जीरो, ओके। आर नीचे एक छोटा सा ये एस्ट्रिक्स बना हुआ, आर star goes to r star, okay, defined by fx is equal to 1 by xs is 1 1 on 2, where is the set of all non-zero real numbers, okay। तो बस रियल नंबर्स में से जीरो को निकाल दिया है। इसी सेट को चलिए आर स्टार को सेट नोटेशन में लिख के देखते हैं, क्या है ये। Can somebody tell me a few ways to write it, just as a revision? We don't have to do this in this question, बताइए। देखिए एक तरीका इसको लिखने का है ये, राइट। Yes, sir. और कोई तरीका बताइए। माइनस इंफिनिटी, क्या करें आगे? यूनियन
राइट। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं इससे। ओके, चलिए अब ये करना है हमें कि fx is equal to 1 upon x और we can say y is equal to 1। तो अब हमें ये क्या प्रूव करना है कि 1 1 है। 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? देखिए f x1 लेते हैं कोई भी is equal to 1 by x1 where x1 not equal to 0। ओके, और f x2 ले लीजिए 1 by x2 हो गया। ओके, if f x1 is equal to f x2, it implies 1 by x1 is equal to 1 by x2, implies x1 is equal to x2, right? अगर आप ये प्रूव कर देते हैं, ये हर एक क्वेश्चन में यही तरीके से प्रूव किया जाएगा। क्या क्या करना है आपको कि आप दोनों दो एलिमेंट्स चूज कर लीजिए और ये कहिए कि वो दोनों इक्वल हैं, उसके जो वैल्यूज हैं यानी फंक्शन वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। और अगर उससे आप ये प्रूव कर दें कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं ये करने से, तो इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया? This implies f is what? 1 1 या इंजेक्टिव। अंडरस्टूड? ये वाला प्रूफ समझ आया आपको? ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा प्रूफ, ठीक है। और अब हमें ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? ऑन टू का मतलब ये है कि अगर हमारे पास fx है तो हमेशा उसकी एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हमेशा, राइट? इमेज नहीं, सॉरी, प्री इमेज। प्री इमेज ऑलवेज exists। Okay, so अगर y is the image, pre-image is 1 upon 1 by, pre-image is 1 upon y, right? Understood? Which is same as x. So pre-image is 1 upon y. Now the question is, does 1 upon y always belong to r star? Where y belongs to r star? बताइए ये सच है या नहीं? हमेशा ये तो हमेशा सच है, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को हम 1 अपॉन रेशनल नंबर लिखते हैं तो वी ऑलवेज गेट द रेशनल नंबर, राइट? राइट, सो Yes, sir. we prove that it is on to also. Okay, now there is a second part to the question. In the result, if domain is replaced by natural numbers, will codomain and codomain remains same as R? ठीक है, तो अब आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट तो अभी भी ट्रू रहेगा, राइट? इवन इफ इट इज अ नेचुरल नंबर, ये तो हम हमेशा ही सेम आएगा रिजल्ट। लेकिन द सेकेंड पार्ट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इफ I write a rational number as this, it is not equal to, it does not belong to natural numbers always, right? जैसे अगर हमारे पास 2/3 है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3/2 is a natural number,
राइट। तो रेशनल नंबर्स से हम नेचुरल नंबर्स पे हमेशा नहीं आ पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस कि अगर हम n को डोमेन बना दें इसका, तो क्या होगा कि ये 1 1 तो रहेगा, ऑन टू नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, सो अब हमें ये पता करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, यानी 1 1 और और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 1 दोनों 1 का होना प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए f ऑफ n1 लेते हैं, क्या होगा f ऑफ n1? लेट्स से n इज ऑड, ओके, या लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट, लेट्स से f ऑफ 2n plus 1 क्या होगा? इट्स अ ऑड नंबर, क्या होगा? 2n plus 1 plus 1 by 2, right, which is n plus 1. Okay, now let's take f of 2n plus 2. Okay, what will it be? अब even number है ये, तो even का रूल बनेगा 2n plus 2 by 2, which is also n plus 1. तो दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है, ओके, बोथ द एलिमेंट्स, दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और दोनों का सेम इमेज है, यानी नॉट 1 1. Actually, if we want, we can stop here, right? We can stop here because, why can we stop here? Because अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, हमसे तो केवल इतना ही पूछा गया है, हमें दूसरा प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, तो वी कैन से इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव, अगर ये होता 1 1, तो फिर हम ऑन टू को प्रूव करने की कोशिश करते, ओके। We'll do one more in the remaining time. Okay. Okay. ठीक है. We are not left with enough time to do trigonometric inverse trigonometry. वो कल कर लेंगे, ठीक है. थोड़े से we will do inverse trigonometry के questions. That's a very easy chapter. उसमें ज्यादा पार्ट तो वैसे भी हटा दिया गया है, ठीक है। कल उसके थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। आपका एग्जाम किस दिन है? ऑन वेडनेसडे, राइट? 9 ऑफ दिसंबर। हाँ, वेडनेसडे, हाँ ठीक है। तो अभी हमारे पास एक कल क्लास आएगी और फिर ट्यूसडे को आएगी। आपको कोई स्पेशल टॉपिक कवर करना है? चैप्टर 7 करवा दें सर, एक बार इसमें से रिपीट से। 7 is इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है। तो हम मंडे को इंटीग्रेशन, ट्यूसडे को इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, ठीक है। कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे और ट्यूसडे को इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर।